Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 4. The chapter which we are related with is depreciation. आपने आज बिल्कुल सुकून से कुछ टाइम एक्स्ट्रा निकालना है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। इस क्वेश्चन में एक नई बिगनिंग है, एक नया लेसन है, एक नया वे है। The very first step is to just read out so that you can recognize the difference of this question with other questions which we have previously solved. On 1st January, firm purchased machinery, machine खरीदी पुराना काम. On 1st July 21, buys additional machinery. ये एक नया काम है. On 1st July, it buys additional machinery. अब इसका मतलब है we have two machines in the same account. यही आज का चैलेंज है जिसको आपने समझना है. यहां चेक करें. फर्स्ट मशीन was purchased on 29/19 and second machinery was purchased on 2021. So there will be two machines and we are making account of both machines इन सिंगल परफॉर्मा. इसी एक परफॉर्मा में जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, इसी परफॉर्मा में दो मशीन्स आएंगी और दोनों को हमने सेटल करना है. आज ये परफॉर्मा भी थोड़ा सा चेंज होगा. यहाँ पे जो लाइंस लगी हुई हैं ये कहीं कहीं बढ़ जाएंगी. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. ऑन 1st जनवरी 19 फर्म परचेज मशीनरी. एज यूजुअल हम ये जानते हैं मशीनरी टू कैश इज द एंट्री और यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दें. डेट इज वेरी क्लियर, 1st जनवरी 19. Okay. And then we have purchased machinery 1 lakh. Machine is coming in. ये machine का account है. 1 lakh आप इधर लगाएंगे और machine to cash entry की वजह से यहाँ cash आ जाएगी. अच्छा, अब next thing you must keep in your mind that change is coming in 21. What I have said? Change is coming in 21. So until and unless we reach at 21, there will not be any change. The accounts are closed each year on 31st December, assuming normal depreciation 10% per annum. Show machinery count under fixed installment method. तो वो हमने पहले ही लिखा हुआ है कि जिस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज फिक्स्ड बेस मेथड. लेकिन आप याद रखिए कि 21 को जाके चेंज आई है. मैं आपको 6-7 दफा बता चुका हूं. On 1st July 21, it buys additional machinery. It means when 21 will come, then we will see what kind of change we want. Otherwise, we will be working very normal. As usual, we'll go over here and December 31st, 19. ऐसे कर लेते हैं 31st December 19 and we will calculate depreciation. Entry depreciation to machine credit हो रही है, so by depreciation आप यहाँ calculate. अब जरा बहुत अटेंटिव हो, आपने ये DEP नहीं लिखना, ये पूरा depreciation लिखना है और वर्किंग यहाँ पर करनी है. मैं सिर्फ लाइन बचाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ. ओके, so amount of machine was 1 lakh. You will multiply it with 10 divided by 100 to calculate depreciation, जो कि यहाँ बोलिए 10% पर annum. सो यहाँ हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. अगेन बताएं, 1 lakh was the amount of asset, multiply by 10 divided by 100. So we have got 1 lakh as depreciation. Then you will calculate balance. How? You will go to smaller side. So here we can see very easily total of this column is 1 lakh, total of this column is 10,000. So balance would be carried down in smaller side credit. कैसे? लार्जर सम में से स्मॉलर सम आप माइनस करेंगे. सो व्हाई नॉट वी शुड कैलकुलेट सम ऑफ बोथ साइड्स. सो फर्स्ट सम ऑफ डेबिट इन द सिमिलर वे सम ऑफ क्रेडिट और बैलेंस ये है लार्जर सम एंड यू विल सब्सट्रैक्ट स्मॉलर सम विच इज 10,000. So we have got 90,000. Then next year would start again 1st January, but it would be 20. आप सब कुछ एज इट इज करते जाएंगे. यहां पर 2 बैलेंस है, बट यू विल राइट ब्रॉट डाउन. हाउ मच अमाउंट? द लास्ट बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर वाज 90,000
It was closing balance and it would be considered as opening balance of next year. अच्छा जी, अब इसके साथ और इसके साथ डेट साथ लगनी चाहिए। Now 31st December, but next year 20 आ जाएगा and you will be doing everything similar। ऐसे ही आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और बैलेंस कैलकुलेट करना है। एवरीथिंग इज सिमिलर और आपको अच्छी तरह से पता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ अंडर फिक्स्ड बेस मेथड वुड नॉट बी ऑल्टर्ड। सो 10,000 ऊपर थी, 10,000 नीचे थी। अब चूंकि एवरीथिंग इज सिमिलर, अगेन यू विल कैलकुलेट टोटल ऑफ बोथ साइड्स and then you will calculate balance by subtracting smaller amount from the larger total. Larger total 90,000 and smaller sum was 10,000, so we have got our balance. Lady, 2 years completed. Now 1st January 21 आ गया and here you will be writing balance brought down। अब यहाँ पे थोड़ा सा रफड़ है, वापस आए ऊपर। On 1st July 21, it pays additional machinery 20,000 and spends 2,000। और कल मैंने आपको समझा दिया था, ये लिखा भी हुआ है, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्शन, परचेज, ये सारे के सारों में एसेट ही डेबिट होता है। और उसने 2,000 इरेक्शन पे, और इरेक्शन का वर्ड हमने कल ही यहां से समझा हुआ। अब इस जगह पर आपको फोकस रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होने लगे हैं दो एसेट्स। यहां पर नीचे वाली लाइन हम कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हाउ मच बैलेंस ऑफ ओल्ड 80,000, तो आप 80,000 यहां लिख दें और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ये ओल्ड मशीनरी थी। कीप इट इन माइंड, यू डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग ओवर हियर एक्सेप्ट बैलेंस। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ समझाने के लिए। 80,000 भी बाहर लिखना है, बाहर लिख सकते हैं, ओल्ड तो लिखना ही नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब वापस जाएं, on 1st July 21 it buys, again you are buying your machinery to cash, so you will put amount on debit side। और जैसे यहां किया था ना टू कैश, इसी तरह यहां कैश में करेंगे। अच्छा, अब गौर से बात समझें कि एक्चुअली तो मशीन की वैल्यू वाज 20,000 बट यू हैव स्पेंट 2,000 अपॉन इट, सो बोथ एंट्रीज आर सेम। तो असल में ये एसेट आपका 20 का नहीं है, 22,000 रुपए का। और ये वाला जो एसेट है इट वुड बी कंसिडर्ड न्यू एसेट। समझ आ गई बात की? 80,000 was बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ओल्ड एसेट। ये पुराना एसेट था 80,000 रुपए का, और एक हमने नया एसेट खरीदा है 22,000 रुपए का। इसकी डेट डिफरेंट है, वो आपने काफी दफा देखी, 1st July 21। सो आप क्या करेंगे, जस्ट पुट डाउन द डेट 1st July 21। Okay, and the next is procedure of calculation of depreciation 31st December 21। Again you will calculate two depreciation। अच्छा, यहाँ आप जो आउटर कॉलम है वहां आप लिख सकते हैं 80,000 का एक एसेट है, 22,000 का दूसरा एसेट है, सो टोटल अमाउंट ऑफ एसेट इज 102,000। इधर आप लोगों ने जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले आप ओल्ड की कैलकुलेट कर लें। अंडरस्टैंड करें, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है इसे लिखने के लिए। एक तो डेप्रिसिएशन आपने पूरी पूरी लिखनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए ओल्ड लिख रहा हूं। अच्छा जी, ओल्ड की डेप्रिसिएशन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। 80,000 वॉज वैल्यू ऑफ एसेट, और चूंकि फिक्स बेस है था ना, वो तो चेंज होगा नहीं, तो फिक्स बेस के अंदर आपको हमेशा फर्स्ट वैल्यू ऑफ एसेट को ही पिक करना है। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, एज यूजुअल वो 10,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कैन यू सी दैट डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 10,000, सेकंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 10,000, इट वुड नॉट बी ऑल्टर्ड। इन द सिमिलर वे नाउ यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर न्यू एसेट। और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू एसेट वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि दोनों का रेट तो सेम है,
लेकिन मल्टीप्लाई दोबारा करें और ये ध्यान करें, यू हैव बॉट दिस मशीनरी ऑन 1st जुलाई एंड यू आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन 31st दिसंबर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जुलाई विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट्स फर्स्ट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स की। सो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था आज के क्वेश्चन के लिए आपको टाइम निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दो एसेट्स हो गए हैं एंड बोथ एसेट्स वुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। There are two assets. One was old, you have calculated depreciation for old. One was new, you have calculated depreciation for new. अब यहाँ पर इसकी depreciation भी आप लिख सकते हैं। कैसे? 22,000 was the value of asset, multiply by 10 divided by 100 and then multiply by 6 divided by 12. तो आपके पास दूसरी depreciation आ गई। अब next target is to calculate our balance. और इन सब की जो डेट है, डेट इज सिमिलर 31st दिसंबर 21। अब बैलेंस कैलकुलेट करना है तो दैट वुड आल्सो बी कैलकुलेटेड इन टू डिफरेंट वेज। सबसे पहले तो आप देखें, यू हैव ओल्ड एसेट, यहाँ पे इसका बैलेंस कैलकुलेट करना है। पहले वैल्यू ऑफ दैट एसेट वाज 80,000 एंड इट्स डेप्रिसिएशन इज 10,000 and finally you have got the value as 70,000. so इसका मतलब है पहली डेप्रिसिएशन, पहला बैलेंस कैलकुलेट हो गया। कैसे किया है? देखिए, ये दिस वाज द वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट एंड दिस वाज वैल्यू ऑफ ओल्ड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड एसेट। 80,000 रुपए का एसेट था, 10,000 की डेप्रिसिएशन थी, तो रिमेनिंग 7,000 आपके पास रह गया। अब अगली बात, आपको फिर बैलेंस कैलकुलेट करना है, लिखें या ना लिखें। आप यूं भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट बैलेंस आप यहां पर जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वही यहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें। अब देखें, वैल्यू ऑफ सेकंड एसेट वाज 22,000 एंड देन यू हैव सब्सट्रैक्टेड इट्स डेप्रिसिएशन दैट वाज 11,100। अब जब आप बैलेंस बाहर लिखेंगे तो आपके सामने दो बैलेंसेस हो गए, एक 70,000 था और दूसरा बैलेंस यहां से चेक करें 22,000 का था और उसमें से 1100 डेप्रिसिएशन थी। तो ये दो बैलेंस आपके पास आ गए। दूसरा बैलेंस कैसे निकाला? 22,000 वाला एसेट था एंड डेप्रिसिएशन वाज 1100, सो 20,900 वाज सेकंड बैलेंस। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 20,900। ओके, एक दफा फिर मैं आपको बता रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। लुक, देयर आर टू एसेट्स, दिस वाज ओल्ड एसेट और ओल्ड एसेट को हम थोड़ा सा चेंज ना कर दें इसका कलर, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो और समझ आए। सो वी आर गोइंग टू मेक इट रेड। Depreciation would also be going to change so that it could be visible in different way. So last was its balance, वो भी हम we are going to change it. So now please understand what we have done. This was the red line, just focus upon the red line. It was old asset, old depreciation and its old balance, and the black you are looking is new asset depreciation which was 1100 and then balance. क्या किया? 22,000 was value of asset, 1100 was depreciation, माइनस किया और फाइनल वैल्यू बाहर ले गई। अब इसका हम टोटल करके जज कर लेते हैं कि वेदर वी हैव डन राइट और रॉन्ग। इधर एक ही टोटल है तो 102,000 और यहाँ पर you will take the sum of both sides और आपने चेक किया 102 इधर 102 इधर, इसका मतलब है ये ठीक है। अच्छा, जब आपने समझना है तो what you will do, you will focus upon red, old asset red, old depreciation red, old balance which is related to old machinery. 80,000 was value, 10,000 was depreciation, 80,000 minus 10,000 70। तो एक तो 70 का था और दूसरा 20,900 का था, मिला के 90,900। अब अगले साल हमने चलना या नहीं चलना वो हम यहाँ पर देखेंगे।
कहां तक जाना, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years। हमने कितने किए, 1 2 3 एंड नेक्स्ट इज 4। डेट विल बी सिमिलर, 1 जनवरी 22, और यहां पर यू विल बी मेंशनिंग बैलेंस। अब यहां पर दो बैलेंस है, एक तो 70,000 का था, वो पुराना एसेट चलिए आ रहा है, और दूसरा 20,900 वाला था, ये नया एसेट है। सो सिंपली आप क्या लिखेंगे, ये वाला जो बैलेंस 90,900 है वो बाहर आप लिखेंगे। ओके, अब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मैं ये सारा प्रोसीजर दोबारा करता हूं, क्योंकि यहां पहले एसेट की डेप्रीसिएशन दैट वुड बी सिमिलर 10,000। अब दूसरे एसेट में आप गौर कीजिए, 31 दिसंबर it would be 22, same date would be used for other calculation as well। अब बताइए क्या फर्क पड़ेगा, when you have bought this asset on 1st July depreciation was charged 31st December, so there were 6 months। अब तो वो पुराना हो गया एसेट वो भी, so 1st January 22 to 31st December, so it means this 6 months would not be mentioned over here, simple। और अब आपके पास दो डेप्रीसिएशन आ गई, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ये 2200 डेप्रीसिएशन आ गई। अच्छा जी, अब आपको बैलेंस निकालना है, और बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर देखें पुराना एसेट था 70,000 का। ओके, बैलेंस आप निकालने लगे हो, 70,000 was starting balance and depreciation of old asset is 10,000, और the answer you will get is 80,000। अच्छा, अब दूसरी तरफ आपका जो पुराना एसेट था, चेक ओवर हियर 20,900 एंड डेप्रीसिएशन इज 2200, इसको भी आप चेंज कर दें, और इसका आंसर हम यहां पे पहले निकालते हैं, फिर ऊपर लिख देंगे 20,900 माइनस 2200, 18,700, वो आप यहाँ पुट कर दें 18,700। अब बैलेंस हमें टोटल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 70,000 में से 10,000 निकाले तो 60,000 आपके पास बचे, ये रेड ओल्ड एसेट। सो ओल्ड बैलेंस वाज 60,000 and new asset balance is 18700। So we have got 78,700, और यहाँ देखें बैलेंस मशीनरी का 78,700 over here। Similarly you will be calculating total of both sides। यहाँ दोबारा हम सम का लगा लेते हैं, so here we have got total। Similarly अब टोटल यहाँ करेंगे, यहाँ पर भी लगाने की जरूरत है। ओके जी, तो आपने देखा यहाँ पे 10,000 वॉज डेप्रिसिएशन, 2200 डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस और टोटल दोनों साइड का इक्वल हमारे सामने आ गए। अच्छा, अब मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो इतना हिस्सा है ना जिसके अंदर आपने एक और एसेट परचेज किया था, आपको फोकस यहाँ रखना है। मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है, इस जगह के ऊपर दोनों एसेट्स का कलर चेंज कर दिया। अब आपको फोकस ये रखना है कि जो रेड है उसको अलहदा से डिस्कस करना है। यहाँ पे ये लास्ट जो था इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, सो दैट इट कुड बी इजी फॉर यू। अब सोचिए मैंने आपके लिए क्या हेल्प की है कि रेड लाइन ये ओल्ड एसेट था 80,000 का, सो डेप्रिसिएशन यू हैव कैलकुलेटेड 10,000, दैट वाज डेप्रिसिएशन अपॉन ओल्ड एसेट। ऑलराइट, और बैलेंस कैसे निकालेंगे, लुक 80,000 रेड ओल्ड एसेट, 10,000 रेड डेप्रिसिएशन, तो 80 में से 10 निकाले, 70,000 उसकी डेप्रिसिएशन, और फाइनल बैलेंस आपके सामने आ गया।
इसी तरह से अगले साल भी 100% सिमिलैरिटी के साथ आपने किया। और वो कैसे? यहाँ से आपने चेक किया 70,000 वॉज बैलेंस, जो हम पुराना ये देखें ये वाला बैलेंस वी हैव ब्रॉट डाउन 70,000, इट्स डेप्रिसिएशन 10,000, तो बाकी बचा 60,000। अब ब्लैक में चेक करें 20,900 वॉज बैलेंस, डेप्रिसिएशन ब्लैक 2200, सो 20,900 माइनस 2200 डेप्रिसिएशन, बैलेंस आ गया 18,700। और कलेक्टिवली अब हमारे पास दोनों एसेट का जो बैलेंस है वो कितना, 60,000 ओल्ड बैलेंस, 18,000 बैलेंस ऑफ न्यू मशीन। व्हेन यू विल टेक द सम, सो बैलेंस वुड बी 78,700, जो कि यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। अब इस सारे प्रोसीजर का मतलब ये है कि जब दो एसेट होंगे तो दो डेप्रिसिएशन होंगी और दो बैलेंस होंगे, क्योंकि दोनों को आप अलग अलग करेंगे। दे कैन नॉट बी मिक्स्ड। Why? Because their date is different, and sometime in book you will see that old asset rate of depreciation would be different to rate of depreciation of new asset, तो तब भी आपको मसला हो सकता है। इसलिए आपने इसको जब ऑब्जर्व करना है तो रेड और ब्लैक को अलग अलग ऑब्जर्व कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड क्विकली एंड इजीली। सो दैट वाज टुडेज क्वेश्चन। आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको खुद करें, अपने हाथ से करें। सोल्यूशन तो आपके पास है ना, सो परेशानी की बात नहीं है। आप इसको सॉल्व करें, और व्हेन यू विल सॉल्व इट and you are feeling anything difficult, ask me through messages, text or comment, or you can directly meet to share your problem. I will humbly be trying my best to answer your question quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.